Some big developments coming in as far as the neighborhood country of Nepal is concerned. An uprising currently underway. Some big details emerging straight from the country. Let's take a look. Nepal's government has lifted its controversial ban on major social media platforms following days of violent protests led largely by Gen Z demonstrators. Prime Minister KP Sharma Oli expressed deep sadness over the violence, blaming the unrest on the involvement of vested interests that disrupted that was meant to be a peaceful protest. He assured that the government supports the use of social media and announced that an investigation committee will be formed to examine the incident and recommend measures to prevent future violence of such kind. The protests began as a backlash against the social media ban, but have grown into a larger movement against corruption. At least 19 people have died and over 300 got injured in clashes across the country. In Kathmandu, protesters breached security near the parliament, vandalized gates and clashed with the police. The curfew remains in effect in key areas including the legislature, the president's residence and also the Prime Minister's office. Public anger has been fueled by viral TikTok videos showing politicians' children flaunting wealth, highlighting the contrast with ordinary citizens of Nepal. The United Nations and Amnesty International have called for a transparent probe into reports of excessive use of force, including the alleged use of live ammunition. India has not commented on the situation in Nepal yet, but has tightened the security along the border districts, while Nepal has deployed the army in several violence-hit regions, including the Terai. The visuals of the Gen Z revolution coming up on your screens straight from ground zero. This is what the situation in Kathmandu is looking like at the moment. We've been given to understand that Gen Z revolution, as they have titled it, it will be resumed today. What began as an uprising against a social media ban in the country quickly took another turn. Now it's against the corruption. Prime Minister of Nepal, KP Sharma Oli, also expressed deep sadness over the violence, also the death of 19 people during the protests. He blamed this unrest on the involvement of vested interests that disrupted what was meant to be a peaceful protest. सेनापति र राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्छौं यो सरकारसँग वार्ता गर्दैन क्यापिटो Also coming in, a special report straight from ground zero. Let's take a look. इस वक्त हमारी मौजूदगी काठमांडू में नेपाली संसद के ठीक बाहर है, जहां पर कल घंटों हिंसा चली थी और आगजनी की घटना, गोलीबारी की घटना देखने को मिली है। सुबह का वक्त है और इस वक्त सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कल किस तरह से तांडव किया गया था वो भी दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नेपाली संसद के गेट है उसके बाहर इस तरह के बैरियर्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा कल किस तरह से पत्थरबाजी की गई थी, यहाँ पर जो गेट तोड़े गए थे उन सब की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। इस तरह से बैरियर लगाकर और इस तरह से तारबंदी करके रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, गेट तोड़ दिए गए, आगजनी की गई और इस पूरे इलाके में जमकर तांडव मचाया गया, क्योंकि नेपाल की जो जेनजी जनरेशन है वो कल सड़कों पर उतर आई सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिसमें तमाम 26 सोशल साइट्स को बंद करने का फैसला किया गया था। और आप संसद
संसद भवन की तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैरियर्स को तोड़ा गया, आग लगाया गया, वो हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ पर वो युवा जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे वो यहाँ पर जमकर तांडव मचाते हैं और अभी भी वहां पर आप देखेंगे सुबह का वक्त है, नारेबाजी हो रही है। हालांकि सरकार ने कल देर रात इस फैसले को वापस ले लिया और ये कहा कि कोई भी सोशल साइट को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन ये संसद भवन के बाहर वो सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए बनाया गया कमरा है जिसमें आग लगाई गई। इस आप देखेंगे रेलिंग को तोड़ दिया गया, यहां पर आग लगा दी गई, इस तरह के रेलिंग्स को तोड़ा गया, पेड़ों को उखाड़ दिया गया और जमकर यहां उत्पात मचाया गया। और जैसे ही, क्योंकि नेपाल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब संसद भवन के बैरियर्स को तोड़कर छात्र और युवा संगठन अंदर जाना चाहते थे, सरकार के फैसले के ये लोग खिलाफ थे और जमकर आंदोलन कर रहे थे। और जब ये देखा कि संसद भवन के अंदर छात्र घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो न सिर्फ काठमांडू, पोखरा, भैरावा, इटहरी समेत कुल 8 जगहों पर इस तरह के कर्फ्यू लगा दिए गए, गोलीबारी की गई जिसमें लगभग 19 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है। सेना को तैनात किया गया है। सामने आप देखेंगे पूरी तरह से मुस्तैद पोजीशन में है। हालांकि कल रात में सरकार ने इस उपद्रव के बाद, गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद इस फैसले को वापस लिया और झुकती हुई नजर आई जो छात्र और युवा संगठनों के आंदोलन के आगे। और आपको बताते चले कि उसके बाद से अब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है। कल देर रात तक कर्फ्यू लगाया गया था और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कुल लगभग 8 जगहों पर और शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था और संसद भवन के बाहर इस वक्त भी अभी भी तनाव बना हुआ है। ये संसद भवन के जाने वाला मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार नंबर 1 और वहां अंदर सेना की तैनाती है और बाहर लोगों का जमावड़ा है। और कल किस तरह से उपद्रव किया गया था वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये सारी रेलिंग्स तोड़ दी गई। यहां से लेकर आप आएंगे तो इस तरह से देखते जाइए, ये पूरी रेलिंग यहां से वहां तक टूटी हुई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम हैं दोनों तरफ, उन रूम्स में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई, सारे शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। और यहां पर जो मोर्चा संभाले हुए पुलिसकर्मी थे वो भाग खड़े हुए। इस वक्त देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, पत्थरों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो रेलिंग टूटी हुई है, जो शीशा टूटा हुआ है, जो आगजनी की गई है, उसके निशान आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आएंगे। ये वो रूम है जहां पर कोई अगर संसद के भवन के अंदर जाता है तो स्कैन होकर गुजरता है। यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब सुबह का वक्त, इस आंदोलन को और इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, यानी तनाव बना हुआ है और नारेबाजी चल रही है। उन नारेबाजी के बीच में एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कुछ छात्रों से कि ये लोग अब क्या चाहते हैं, माहौल क्या है और क्या हो रहा है। एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या स्टेटस है इस वक्त? अभी क्या है, हमको ना करप्शन बंद करना चाहिए। नंबर 1, इलीगल थिंग्स, करप्शन, वी हैव टू स्टॉप करप्शन। एवरीवेयर यू डोंट गो देयर इज ऑलवेज चीटिंग पीपल, हर्टिंग पीपल। हमारा पैसा से वो करती रहा, हम जनता इतना करती रहा। आप लोग नारे लगा रहे हैं, सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, क्या यह आंदोलन आगे जारी रहेगा? क्या यह आंदोलन अभी भी जारी रहेगा आगे? हाँ, चल रहा है आंदोलन, तो अभी चल रहा है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जो सोशल साइट्स पर बैन करने का फैसला था हम वो वापस ले रहे हैं, तो क्या गलत इंटरनेशनली मीडिया को सुधारना पड़े। ये करप्शन के खिलाफ है, ये तानाशाही के खिलाफ है, इंटरनेट के बैन के खिलाफ नहीं है, फेसबुक के लिए नहीं है भाई, फेसबुक के लिए मेन आपकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप, इंस्टा के खिलाफ नहीं है। ये तो कल जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया था, गोली चलाई गई युवाओं पर, आज भी आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? दमन करना चाहता है, आवाज बंद करना चाहता है। इसीलिए ओली सरकार ने निर्कुश सरकार हो गया है। ये बच्चों पर गोलियां चला रहा है। ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ है। इन नेपो बेबी के शौक पालने के लिए हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। ये हमारे लिए सुख सुविधा के लिए है, फ्यूचर के लिए हमारे लिए टैक्स पे। क्या चाहते हैं, मांगे क्या हैं आज की? सरकार नहीं चाहिए, सरकार हट जाए। सरकार मर गया नेपाल में। तो आप लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन फिर से चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी फिर से देउबा ओली या प्रचंड बने।
इसको कौन मानना चाहिए? संसद विघटन हो और अभी नया हम लोग चुन लेंगे। अभी का स्थिति में जो अभी का जो राजनीतिक दल है उनके बाहर का कोई भी आदमी हम लोग चुन लेंगे, लेकिन राज्य के कानून के हिसाब से हम लोगों को एक इलेक्शन का डेट फिक्स होना चाहिए। दोबारा चुनाव चाहते हैं आप लोग, नया प्रधानमंत्री चाहते हैं, इलेक्शन वी वांट री सिस्टम इलेक्शन। चाहते हैं हम लोग। करप्शन के खिलाफ है, जी करप्शन नेपो बेबीज के खिलाफ है। एकदम जो सोशल मीडिया बैन के बात है ना, उनमें से एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि करप्शन खत्म होना चाहिए। हमको करप्शन एकदम हावी हो आज गया है। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, सरकार के सोशल मीडिया बैन को हटाने के बाद क्या आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा या आप लोग वापस चले जारी जाएंगे? रहेगा। ये शुरुआत हो चुका है। जब तक सिस्टम नहीं परिवर्तन होगा तब तक जारी रहेगा। जारी रहेगा। करप्शन जब तक अंत नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त संसद भवन के ठीक बाहर मेन रोड पर हम खड़े हैं और मेन रोड की मेन सड़क को ब्लॉक करके अभी युवा संगठनों ने रखा है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम नेपो बेबीज के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने, एक स्वच्छ सरकार बने जो यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र संगठन सड़कों पर है। सरकार के बैन हटाने के बाद भी अभी भी तनाव खत्म नहीं हो रहा है। री इलेक्शन, फ्रेश फेस, करप्शन फ्री स्टेट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नेपाल को आगे बढ़ाने वाली सरकार आए और फिलहाल अभी भी संसद भवन के बाहर यहाँ पर तनाव बना हुआ है। So that was the latest ground report that we got through our reporter who is currently there situated in Kathmandu. He brought us the voices of people, what exactly are they demanding. Like I said before, the protests have resumed for today as well. People are demanding removal of KP Oli from his position. They are in favor of getting the re-elections done as soon as possible in Nepal. Till then, they are saying they are not going to back down and will continue with their protests. Joining us live from Kathmandu is political analyst Rita Khanal. Rita जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने वॉइसेस सुनी, हमारे रिपोर्टर वहाँ काठमांडू में प्रेजेंट हैं, उन्होंने वहाँ पे कुछ बच्चों से, कुछ लोगों से बातचीत करी, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के बारे में है, लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा थ्रू दैट रिपोर्ट कि उनका ये कहना है कि हमें केपी ओली को रिमूव करना है बस उनकी पोजीशन से किसी भी तरीके से। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है एट प्रेजेंट? क्या आपको लगता है, क्योंकि होम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये लोग के बहुत पहले थे, अब तो बहुत पहले ये लोग के पहले भी करना चाहिए, लेकिन अभी यूथ जो हमारे पोता हमारे उनको तो हम लोग माँ है, हमारे पोता हमारा बेटा बेटी का जो अभी हादसा किया है वो बहुत दुख का बात है। अभी सबसे पहले तो मैं तो इतने भावुक हूँ कि बोल भी नहीं पा रही हूँ। जो हमारे 25 से ज़्यादा बच्चों के हादसा हुआ, उनके तरफ से एक माँ के तरफ से वो श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। उनके परिवार के लिए एक गहरा संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ। जो अभी घायल हैं उनका शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करना चाहती हूँ। अभी ये गृह मंत्री ने जो राजीनामे दिए यही काफ़ी नहीं है, अभी और हादसा होने वाला है और क्षति होने वाला है। उनसे पहले ये भ्रष्ट ऑटोक्रेटिक जो सरकार का जो प्रधानमंत्री हो उसको अभी 1 घंटा के अंदर राजीनामे की मैं मांग करती हूँ। ये ऑटोक्रेटिक और ये जो करप्टेड प्रधानमंत्री है, इसने 30 साल से एक ही फेस नेपाल में सर्वसम्मत करके ये जो दल है, ये 4 दल, इसमें प्रमुख कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ये दल को नेपाली जनता नहीं चाहते हैं। इसका ये फिगर अभी राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोग ने नियता, जिसके पास कलम था, कॉपी था, वो अपने सामाजिक संजाल के मुद्दा लेकर और एंटी करप्शन का मुद्दे लेकर जो सड़क में गए थे, उन लोग को इन्हें निहत्था आदमी को जो हत्या किया, निर्मम क्रूर हत्या किया, ये विश्व राजनीति में एक कलंक के इतिहास ने कल वो कलंकित इतिहास ने इसने रच दिया। इनको जितने जल्दी हो राजीनामा देना चाहिए प्रधानमंत्री केपी ओली का।
पिताजी, क्योंकि आपने भी कहा कि बहुत सारे बच्चों की यहाँ जान चली गई, हमें पता चला है कि यूनिफॉर्म में बच्चे थे जो प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे गए हुए थे, उनकी जान चली गई गोलीबारी में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कमिटी जिसकी बात केपी ओली जी ने कही है कि ये कमिटी है, ये रिपोर्ट सबमिट करेगी ताकि इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट फ्यूचर में ना हो पाए, इस कमिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये कमिटी रिलायबल है? क्या ये कमिटी उस तरीके की रिपोर्ट बना पाएगी? क्या ये कमिटी किसी तरीके का सोल्यूशन लेके आ पाएगी? कल से ही प्रधानमंत्री केपी ओली का एक कमेटी बनाने का भी हक नहीं है। एक कमेटी के नाम पे और हादसा करने का भी उसके हक नहीं है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। जब नेपाल में 1990 में हमारा प्रथम जन आंदोलन हुआ था, उस टाइम लगभग 50 दिन आंदोलन हुआ था। उस टाइम में 18 पीपल का हादसा हुआ था, मौत हुआ था। फिर नेपाल में दूसरा जन आंदोलन हुआ 2006-7 में। उस टाइम में अराउंड 19 दिन 19 डेज जन आंदोलन हुआ था। उस टाइम भी 18 पीपल का ही मौत हुआ था। लेकिन कल एक नियता जनता पीपल जो हमारा पोता पोती है, हमारा बेटा बेटी है, एक नियता कापी और कलम बुक कर अपने सामाजिक संजाल को ऑटोक्रेसी मत बनो। सामाजिक संजाल की जो सुविधा है, हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, उसको खुला करो। और ये भ्रष्ट सरकार को अब अंत होना चाहिए। ये मुद्दा लेकर एक करप्शन के एंटी करप्शन का एजेंडा लेकर जो सड़क में गए थे, वो निहत्ता बाल बच्चों के 2 घंटा के अंदर अंदर इनने 25 से ज्यादा आदमी को इन्हें हंसा क्या है। और मुझे शक लगा है कितने बहुत सा लाश इनने गायब भी कर सक रहे हैं, मुझे उसमें शक है। और 500 से ज्यादा आदमी अभी भी जख्मी है। एक आदमी का 4 गोली इन्हें दफन किया है। इसीलिए एक ऑटोक्रेटिक के इतिहास के आज तक के परिवर्तन, नेपाल में 2 परिवर्तन हो चुके हैं। वो परिवर्तन के टाइम में भी 19 दिन में 50 दिन में भी 19 से ज्यादा आदमी का मौत नहीं हुआ था। 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे पोता पोती को इसने जो हत्या किया, हमारा बेटा बेटी को जो हत्या किया, इसको वो कमिटी का कोई जर्नल है। मैं आपके लोकप्रिय मीडिया से मैं आग्रह विश्व कम्युनिटी का ओल्ड कम्युनिटी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि नेपाल के राजनीति में हस्तक्षेप कीजिए। बहुत जल्द 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजाइनेशन होना चाहिए। और विश्व ओल्ड पॉलिटिकल क्या प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस से नेपाल में अंतरिम गवर्नमेंट बनना चाहिए। और अंतरिम गवर्नमेंट ही री इलेक्शन कराएंगे। अभी जो नेपाल के मौजूदा पार्टी है, उनके फिगर नेपाली जनता युवा नहीं चाहते हैं। ये युवा जो चाहते हैं, इनका जो चाहते हैं वही हिसाब से अब नेपाल के राजनीति को मोड़ लेना चाहिए। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत तो हमारा पड़ोसी देश भी है, हमारा जो बेटा बेटी के आज के दिन फिर वो कम्युनिटी के नाम पे उनका जितने भी प्राइम मिनिस्टर का जो निवास है, जहाँ इसका जो मंत्रिमंडल बैठती है, वो मंत्रिमंडल का जो निवास है, वहाँ वो लोग ने कर्फ्यू लगा चुके हैं। हमारे बेटा बेटी कल हमारे जेड हमारे 18 साल 14 साल से 28 साल के अंदर का हमारा बेटा बेटी का आंदोलन था, आज हमारे माँ बाप का आंदोलन बन गए। फिर भी हम ना जाऊं तो माँ तेरा बेटा बेटी मर रही थी, तू कहाँ है, वो प्रश्न करेंगे। हम जाऊं तो तुमको तो हमने नहीं बुलाया था। ऐसे आंदोलन की स्थिति है, लीडरशिप लेने वाला कोई नहीं है रे। इस अवस्था में जो हमारे पड़ोसी देश है, मैं वहाँ के राजनीतिज्ञों से भी आह्वान करूंगी कि नेपाल में अभी अभिभावक विहीन नहीं बनाना चाहिए और हादसा रोकना चाहिए। 2 घंटे के अंदर अंदर ये सरकार के बर्खास्त करके नेपाल में अंतरिम गवर्नमेंट। रीता जी, मैंने आपको सुना। अनफॉर्चुनेटली वी हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम ऑन दैट चैट, बट रीता जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज यू कैन क्लियरली सी दैट the call for a demand for an interim government removal of KP Oli is growing louder with each passing day. These are the live shots that we are bringing you straight from ground zero. This is what the uprising at the moment is looking like. It has resumed. Today is Tuesday. Nepal, as of now, in the latest development, has uplifted the ban on social media it had imposed after violent protests by youths rocked the country on Monday, with police's use of force leaving at least 19 people dead and over 300 others injured, and Home Minister Ramesh Lekhak also resigning over the situation there.